आपको याद हो हमने वहाँ जी। पर एंड किया था, एंड हाउ हज़रत खालिद बिन वलीद ही रिपीटेड, यहाँ पर हमने किया था, इट वाज आल्सो कॉल्ड अ बैटल ऑफ चेंज बिकॉज़ द पर्सन दे चेंज देमसेल्फ ड्यूरिंग वॉर नॉट टू लीव द बैटलफील्ड। ठीक कि है, हम अभी लोग साथ कंटिन्यू। में मरेंगे या फिर एग्जैक्टली। जी। अब क्या हुआ कि व्हेन पर्शियन दे सरेंडर्ड, अब मुस्लिम क्या करते हैं, देखिए आपको मैंने बताया था मुस्लिम दे डोंट डू जिहाद फॉर मनी फॉर थिंग, दे डू जी। जिहाद टू प्रीच इस्लाम, और उसमें कंडीशन ये है कि इफ दे अग्री टू पे जिजिया अ काइंड ऑफ टैक्स, एंड दिस हैपन इन एवरी नेशन, हमारे मुल्क में भी टैक्स लिया जाता है, तो मुस्लिम चार्ज द टैक्स जिजिया, एंड अगेंस्ट दैट टैक्स दे प्रोटेक्टेड द लाइफ एंड ऑनर एंड प्रोटेक्ट द दोज नॉन मुस्लिम्स। तो ये भी एक ऑफर होती थी उनको, ये सेकंड ऑफर होती थी, अगर वो भी ना माने फिर उसके बाद वॉर होती थी। तो खालिद बिन वलीद आफ्टर खजीमा ही वाज मार्च फ्रॉम हिरा मार्च टुवर्ड्स अंबार, दीज आर डिफरेंट प्लेस, आपको ना छोटे छोटे नाम याद रखने पड़ेंगे। एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर ऑफ पर्शियन एम्पायर, द टाउन वाज प्रोटेक्टेड बाय वॉल्स एंड डीप मॉट, क्योंकि उस जमाने के अंदर दे यूज्ड टू लिव इन बिग कैसल्स एंड फोर्ट्रेसेस, और यूजुअली जो उनके एग्रीकल्चर होता था वो सब बाहर होता था। So Hazrat Khalid adopted a clever strategy. हुआ ये कि because it was very strong area and it was not easy for Muslim to cross because there were lots of moat over there. So he used a technique to slaughter those camels who are weak. They cannot bear the pressure of the journey and war, and they fill the gap and they cross that moat with their bodies, and somehow they enter into the Hira and Ambar. So this was the technique he followed, and due to that reason, Hazrat Khalid bin Walid Muslim they captured the new place. ठीक है। They could not resist. ठीक है. Then can go other places. अब दामतुल जंदल और से ये तो खास पे याद रखना, दामतुल जंदल is a place where right after Hazrat Ali's battle of Siffin, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी, हम फ्यूचर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह व्हेन वी डिस्कस अबाउट हज़रत अबू सिद्दीक कैलिफेट। This place was also captured during Hazrat Abu Siddiq's time. The ठीक है। last bit of this expedition was took place at Firat. Firat was the place where it was the last battle fought during just Hazrat Abu Siddiq's time. A fierce battle was fought in 12 AH and Muslim forces defeated the enemies and conquered the place. By this victory, the whole of South and most of North Iraq were conquered. यानी कि जो मेन कैपिटल सिटी थी टुवर्ड ईस्टर्न बॉर्डर, it was captured by the Muslim, and symbolically it was taken that they have captured the big places and they have captured almost all the eastern part. Now, expedited Syria. This is also very important. Al-Basri found that the Roman had begun to conspire against the Muslim. देखिए, Romans and Persians, they were keep watching very closely that new development which was happening in Arabia. ठीक है ना, politically भी उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, and they were super power that time when they learned that there's a man named Muhammad, he claimed himself as the prophet of Allah, and now Arabs they are following him, and now Arab became very strong, so they were keep asking कि how we can keep away from ourselves. Arab were so rigid, so ignorant people, even कि Romans and Persian they did not rule over there, इतने जाहिल लोग थे, इतना वो अनप्रोडक्टिव लैंड था कि रोमन्स और पर्शियंस उस ज़माने में जो सुपर पावर थे, वो उनको रूल करना भी नहीं चाहते थे क्योंकि दे लव फ्रीडम। ठीक है ना, एग्जैक्टली। वो तो ये इस वजह से, और फिर बैरन लैंड था, बताया डेजर्ट के अंदर तो कुछ हो नहीं सकता था, वेरी फ्यू स्मॉल प्लेस दैट वाज कैप्चर्ड बाय द furthermore to take strong action against Romans was also necessary, keeping in view the Arab trade was Syria as the border clashes made the trade routes dangerous. This is one of the technique कि आप अभी भी देखें, आप wars में क्या होता है कि enemies they try to strike the economical condition of a country. जी, एग्जैक्टली। If the nation is economically weak, then the nation will not be able to fight because we need resources. For war, we need money to buy weapons, to do anything. तो जाहिर बात है it was a dangerous thing कि जनाब सीरिया में अगर वो कब्जा कर रहे हैं, वहाँ डिस्टर्ब कर, तो मुस्लिम की अरब दे could not trade, and how can they raise the money? So in 13 years, he raised an army of 27,000 men and divided into four battalions. And हज़रत अबू सिद्दीक ने ये टेक्निक इस्तेमाल की कि उन्होंने आर्मी को बटालियंस में डिवाइड किया, फोर। क्या क्या उनके नाम थे देखिए आप। Amr bin Alas, a very prominent personality, a very famous Sahabi. He debated in the court of, अगर आपको याद हो,
अमर विनाश की कोई आप सिग्निफिकेंस आपको याद है? आपको याद आ जाएगा, एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन टू एबेसिनिया, याद है आपको? टाइम ऑफ At the time of migration to Abyssinia, when Muslims they reached to Abyssinia and they live in peace, so Amr bin As was sent by Quraysh to bring them back. At Amr bin As, he debated ओह in the court of अच्छा Negus. और दूसरी ये अमर बिन आस लोग मुश्रिक की तरफ से, दूसरे लोग कौन थे? दूसरी तरफ से कौन बोल रहे थे, आपको याद है? कुरैश ना नहीं, कुरैश की तरफ से तो अमर बिन आस बोल रहे थे ना, कि भाई अच्छा फिजिटिव भाई यहाँ पर आ गए, रन पीपल आ गए, हमको इनके साथ भेजने। मुसलमानों की तरफ से कौन स्पीक कर रहा था, कौन बात कर रहा था? मुसलमानों की तरफ से हम्म। अ, आप भूल वो गए। याद नहीं है जाफर बिन अबू तालिब, जाफर बिन अबू तालिब अच्छा ठीक है, हज़रत अबू तालिब के बेटे हज़रत की भाई। यजीद बिन सुफियान, जिस यजीद बिन सुफियान, वही यजीद है जिसके बारे में बड़ा चल रहा होता है यहाँ पर। शुरैब बिन हस्साना एंड हज़रत अबू बिन जर्रह। हज़रत अबू बिन जर्रह वाज अमंग 10 बेस्ट कंपेनियंस, अशरफ मुबशर में से। तो हज़रत अबू सिद्दीक ही डिवाइडेड आर्मी इन 4 battalions and he sent them to different directions. Hazrat Khalid, who was busy on Persian frontiers, was also instructed by the Booker to join the Muslim against the Syrians, because the Syrians were also very big power at that time. When Heraclius heard about these Islamic armies, he also sent 4 armies to face them. Heraclius, ये एक टाइटल जैसे फिरौन था उस जमाने में इजिप्ट का, ये टाइटल दिया करते थे जमाने के अंदर किंग्स को। जैसे पर्शियंस की तरफ उनका टाइटल क्या होता था? यज़दगर्द, यज़दगर्द 1, यज़दगर्द 2, इस तरह करके, ठीक है ना? अच्छा तो ये ठीक भी आपको नाम याद है, हिराक्लियस जो इस वक्त किंग था उस जमाने में। ही एक जमाना तो वो था कि अगर आपको याद हो कि मदनी लाइफ के अंदर हाउ तबुक एक्सचेंज हैपन, each of those army was several times bigger than the total Muslim army, because they were having a huge army, a big state over there. They have lots of finance and army, so they used their full force to eliminate Muslims. However, Muslims defeated them and captured many cities, including Basra. अब देखो बसरा, कूफा, ये वो शहर है जो अभी भी इराक में मौजूद हैं, ठीक है ना? अब याद रखिएगा कि कूफा एक्चुअली, आपने कूफा का नाम तो सुना होगा ना? कूफा हम्म। और शायद सुना है बस फील है हाँ, कूफा, जहाँ कूफा के लोगों ने हज़रत इमाम हुसैन को बोला था कि भाई आप आ जी जाए, जी हम आपके यहाँ रिवायत कर लेंगे। तो कूफा वाज बेसिकली अ कंटोनमेंट एरिया। हजरत उमर के कैलिफेट में ढूंढा गया था कूफा एग्जैक्टली, हाँ जी जी ठीक है, कंटोनमेंट एरिया था। और हज़रत उमर वांटेड कि बस आर्मी जो है कंटोनमेंट एरिया में रहे, लोगों के साथ ना रहे। अब वो अच्छा लोगों तो के साथ बेसिकली मिलिट्री सिटी थी ना एग्जैक्टली, तो बहरहाल ये सब उस जमाने के अंदर हुआ। After Fair's battle, Muslim defeat Romans in Ajnadin, which was a great shock to Romans. यानी कि ये वो लोग थे who did not want to rule over Arabs, and they don't like Arab. They thought they are very rigid people, ignorant people. They are no having any protective. So they when they realized कि भाई अब तो हमें challenge करें, हमें defeat करें, तो it was so dangerous for them. After this victory, the Muslim forces marched forward and laid siege to Damascus. इसको कहते हैं सीज ऑफ डेमेस्कस। इसका टाइटल आपका एग्जाम में क्या बोलता है? सीज ऑफ डेमेस्कस, कि डेमेस्कस को कैसे उन्होंने सीज किया। यहाँ पर जब मुस्लिम दे सीज डेमेस्कस, द न्यूज केम टू मुस्लिम आर्मी दैट हज़रत अबू सिद्दीक ही passed away. अच्छा Damascus could not be captured by Muslim. They sieged the Damascus, but they were about to capture it, लेकिन टू टेक न्यूज आ गई मदीने से कि खलीफा का इंतकाल हो गया, आर्मी स्टॉप हो गए। अब इसके बाद की जितनी एक्सपेंशन है ना बेटा, जी वो हज़रत उमर के कैलिफेट के अंदर आएगी। ठीक है मैं इसको रिव्यू कर देता हूँ। सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन जो हुई है वो हज़रत उमर के दौर में भी है, एज फार एज द साइज कंसर्न, ठीक है। लेकिन सबसे बिगेस्ट एम्पायर पे जिसने रूल किया है वो हज़रत उस्मान ने किया है। हज़रत उस्मान ने, हाँ, हज़रत उस्मान ने भी अपनी खिलाफत में एक्सपेंशन की है, लेकिन हज़रत उस्मान की एक्सपेंशन कंपैरेटिवली उतनी नहीं थी जितनी हज़रत उमर ने की थी। तो हज़रत उस्मान, जैसे मिसाल हज़रत उमर ने अगर फॉर 100% एक्सपेंशन की मिसाल के तौर पर, और हज़रत उस्मान ने 50% एक्सपेंशन की, तो 100 + 50 कितना? 150। तो 150 स्क्वायर माइल पे हज़रत उस्मान ने हुकूमत की। बात समझ आ रही है? जी और जैसे मेरा एक क्वेश्चन था पूछे, हाँ पूछे। जैसे मैंने वो एक मुझे याद नहीं है कि किस लीडर ने किया था लेकिन वो जब बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था एम्पायर
तो कॉन्टिनेंट्स में मतलब वो स्प्लिट कर दिया था, आई थिंक 4 हिस्सों में किया था, वो किसने किया था? असल में वो जो है ना, ये जो प्रोविंसेस बनाए थे तो अबू सिद्दीक ने बनाने शुरू कर दिए थे। अच्छा। लेकिन हज़रत उमर के दौरान के बहुत एस्टैब्लिश फॉर्म के प्रोविंसेस बन गए एंड ही डिवाइडेड प्रोविंस इन 12 प्रोविंसेस, मक्का, मदीना, बसरा, कूफा, जी, जी। सीरिया, ये सब उन्होंने बनाया। ठीक है, वो सब आगे आ रहा है। ओके। जैसे आपको मैंने बताया था ना, आपको मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि हज़रत अबू सिद्दीक ने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूट किया मजलिस शूरा, एक बॉडी बना दी, एडवाइजरी काउंसिल। उससे पहले बॉडी नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हुली पर मशवरा नहीं कर, हुली पर मशवरा करते थे, ही टेक एडवाइस because he was ordered by Allah, but he did not constitute any body. And officially, legally, formally, politically, Hazrat Abu Siddiq, he made first time the body that's called Majlis Shura. And when Islam expanded so far, so Hazrat Umar, he divided that Majlis Shura in two categories, Majlis Khas and Majlis Aam. Majlis Khas, you can say like Senates, and Majlis Aam like National Assembly. तो ये सारी डेवलपमेंट आगे होती रही हैं। अच्छा, सो इट वाज बेसिकली लाइक अ कंसल्टेटिव काउंसिल। हाँ, अब एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स बहुत ज़्यादा उन्होंने किए बिकॉज़ ही वाज़ द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द ट्रूली डेमोक्रेटिक स्टेट। अब डेमोक्रेटिक स्टेट हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हालाँकि मैंने आपको पहले बताया था कि इस्लाम हैज़ इट्स ओन पॉलिटिकल सिस्टम। डेमोक्रेटिक स्टेट हम इसलिए कहते हैं कि लोग दे आर फेमिलियर विद दिस। अब डेमोक्रेसी में होता क्या है, दे टेक एडवाइस, दे फॉलो द अच्छा, मेजॉरिटी डिसीजन, ठीक है ना? ठीक है। लेकिन इस्लाम इज़ नॉट डेमोक्रेसी। इस्लाम के अंदर इस्लाम डेमोक्रेसी नहीं है, ये कह सकते हैं इन सम वे इस्लाम इनकरेज डेमोक्रेसी टू टेक एडवाइस, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो लोग फैसला कर देंगे वही वो फाइनल हो जाएगा। फैसला तो फाइनल वही जो अल्लाह उसके रसूल चाहेंगे, जी। ठीक है ना? सो इट इज नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक स्टेट, यू कैन से लाइक दैट। ये तो सिर्फ लफाजी की जाती है जनाब, बड़ी बड़ी बातें की जाती है। ये आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मिसाल के तौर पर जैसे यूके वगैरह में या यूरोप में अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, वो सब डेमोक्रेसी करें, वोटिंग करें और जरा होमोसेक्सुअलिटी को वो लीगल करार दे दें या ड्रग्स को लीगल करार दे दें, तो लीगल हो जाए उनके यहाँ, तो जी। डेमोक्रेसी है। लेकिन हमारे यहाँ अगर सारे के सारे बोले भाई आप शराब को हलाल कर दो, तो कभी नहीं माना जाएगा। लेकिन डेमोक्रेसी जी, के बाद सब बोले तो पिला दो, जैसे तो कुरान में लिखा हुआ है। एग्जैक्टली। तो ये ट्रूली डेमोक्रेट है नहीं, ऐसे लफाजी की जाती है। Following the Quran and Sunnah, Abu Bakr conducted the affairs of the state, discussing all matters with the Majlis Shura, which was constituted of senior most companions. देखिए अब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अगर जो लीडर है, ही इज वोटिंग, कंसल्टिंग, अगर उसके पास फॉर इंस्टेंस 10 एडवाइजर्स हैं, ठीक है ना, और 10 एडवाइजर में 7 एडवाइजर्स एक मशवरा दे रहे हैं, 3 एडवाइजर्स अलग मशवरा दे रहे हैं, तो डेमोक्रेसी सेज दैट वी हैव टू फॉलो 7 वोट। But Islam, it says so it is not essential for the Amir to follow the 7 word. It is Amir who can make a final decision. Yani at the time of sending Hazrat Usama bin Zaid to Syria, या at the time of fighting the tribe who denied to pay zakat, majority लोग ये कहते हैं आप वॉर ना करें, लेकिन वो डेमोक्रेसी के खिलाफ गए, मेजॉरिटी खिलाफ गए, उन्होंने कहा मैं वॉर करूंगा, ठीक है? ठीक है। He divided the state into provinces and appointed governors who were responsible for both administrative and military affairs. देखिए उस ज़माने के अंदर इस्लामिक स्टेट के अंदर जो गवर्नर्स होते थे, जिसको हज़रत उमर ने बाद में आमिल वली में और डिवाइड किया, प्रोविंसेस को हज़रत उमर ने बाकायदा उसको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया। तो व्हेन दे अपॉइंटेड अ गवर्नर व्हिच कॉल्ड वली, दैट वाज अ कंप्लीट पर्सनैलिटी। दैट आमिल गवर्नर वाज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल फिगर, but it was an administrative figure, political figure, and religious figure. यानी कि गवर्नर वाज सपोज टू लीड द सलात, गवर्नर सपोज टू लीड द ईद प्रेयर्स, उसकी जिम्मेदारी होती थी जी, ठीक कि वो है। नमाज भी पढ़ाएगा, सब कुछ करेगा। फॉर एवरी प्रोविंस देयर वाज अ गवर्नर हु वाज रिक्वायर्ड टू लीड द प्रेयर्स, ठीक है, सब सुपरिटेंडेंट आर्मी, कलेक्ट टैक्सेस, एडमिनिस्ट्रेटर जस्टिस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। कंप्लीट अथॉरिटी वाज गिवन by the Khalifa to those people, and they were very selected people, they were capable people to run the first Islamic state according to Quran and Sharia. ठीक है। Governors aided by Amil who collected revenue and a Qazi who administered justice. अब ये काजीज जो है ना, काजी साहब वो काजी साहब नहीं जो निकाह पढ़ाते हैं हमारे, जी, काजी मतलब है जजेस। जी। Had Umar, when he appointed judges, he made judges to responsible to answerable just directly to the Khalifa. और उसका बड़ा इफेक्ट हुआ ताकि वो उसके इन्फ्लुएंस में ना आए। He ओके। laid the foundation of a truly democratic state, following the Quran and Sunnah. Abu Bakr conducted the affairs of the state by discussing all matters with the Majlis Shura, which was considered senior campaign. आपको बताया रिवर्स स्टेट प्रोमिस कर दिया ना, सारा वही चीज़ जी, आएगी जो आपको मैंने बताया था, ठीक है? जी। अब डेथ है कैसे, हज़रत सिख died at the age of 63. This is the same age on which the Prophet he passed away.
अच्छा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये 63 ईयर्स का एज एक आइडियल एज है किसी मुसलमान के मरने के लिए। अच्छा। अल्लाह ताला की ज़िंदगी दे, ज़िंदगी वो तो अल्लाह के हाथ में। लेकिन बहरहाल 63 समझो कि अब आप उसके बाद आप जा रहे हो तो आप बोनस पे चल रहे हैं। हम्म। 27th Jamadi Thani, 13 age on natural causes. I told you earlier, just one Khalifa, that was Abu Siddiq, he was the person who had his natural death. However, other three caliphs, they were killed, they were murdered by the people. His caliphate lasted for 2 years and few months. On his deathbed, he nominated Hazrat Umar as his successor with following dialogue: I will tell Allah that I have chosen the best for your creation by choosing the best from your creation. देखिए ये बात याद रखिएगा कि हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, अब जी। देखिए ना इसके अंदर क्या किया उन्होंने, ही नॉमिनेटेड द नेक्स्ट खलीफा। जी, एग्ज़ैक्टली। तो इस्लाम यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर तो नॉमिनेशन नहीं होती ना, हुँ। डेमोक्रेसी के अंदर तो जब वोटिंग होती है। तो इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम सेज that one can nominate someone for a special post if he feel that person is capable. Hazrat Umar was not the person who was nominated by Hazrat Siddiq at that time, at the time of his death, but he, in the very first meeting where, अगर आपको याद है, सकीफा बिन्त साइदा, where the Ansar they had nominated साद को गवर्नर अपना लीडर बना दिया था, जी। उस वक्त भी हज़रत सिद्दीक he gave two names. एक तो हज़रत उमर का, दूसरा नाम याद है आपको? अ, The second was अबू बैदा बिन जर्राह। चल अच्छा, ठीक है। तो इन दो के नाम दिए थे, लेकिन हज़रत उमर ने कहा कि नहीं भाई, मैं आपके हाथ पे बैत करता हूँ, आप मुझसे ज़्यादा कैपेबल हैं। तो पता ये चला कि हज़रत अबू सिद्दीक, अच्छा, जब इट इज़ सेड कि ड्यूरिंग हिज डेथ बेड, when Hazrat Abu Siddiq he nominated Hazrat Umar as his successor, so few people they argue, ऑफ कोर्स। they complain कि यार actually this is not the right person. Why? क्योंकि they believe कि Umar is very strict person. अच्छा। हाँ, strict person थे. He used to have a hunter in his hand and used to beat the criminals on a spot. तो Hazrat Abu Siddiq he said कि don't worry, the burden of khilafat, the responsibility of khilafat will mold him. The burden of khilafat, the responsibility of khilafat will make him soft. अच्छा। हाँ, तो इट विल नॉट हैपन कि जब आपको उस तरह डिस्टर्ब करेगा। तो ये सारी चीज़ हो गई। इन दिस वे हज़रत सिद्दीक़ ही पास अवे, हज़रत उमर बिकेम द सेकंड खलीफा। ओके। ठीक है, अब मैंने आपको तो हज़रत अबू सिद्दीक़ की कैलिफेट तो मैंने बता दिया। कुछ चीज़ें मैंने कल आपके साथ मेंशन की थी, मार्केट स्कीम के हवाले से कैसे आता है। ठीक है? ओके सर। अब हम शुरू करेंगे हज़रत अबू सिद्दीक़, हज़रत उमर के पूरे कंपेरिज़नशिप। जी सर। हियर इसकी भी वही टेक्निक होगी। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द कंपेरिजनशिप 10 मार्क्स वाला, फिर उसके बाद कैलिफेट 10 मार्क्स वाला। अब कैलिफेट को हम ज़्यादा उसमें देर से शुरू करेंगे कल क्लास में इंशाल्लाह। मैं आई विल टेक योर टाइम, 10-11 मिनट और लेता हूँ बस, अगर आपको ये शेयर हो रही है नहीं। नो प्रॉब्लम सर। कंपेरिजनशिप ऑफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु जी। 40 years before Hijrah he was born. Among one of 17% Makkah who could read and write. He was among those who could read and write. That's why he was like the people. A bitter enemy of Islam and the Prophet. In the beginning, when he did not accept Islam, he was among those people who was so much hated, who was hating the Prophet and the new religion. Prophet had prayed to God for the conversion. देखिए, at the time of Makki life, when Muslims were so much oppressed and persecuted and tortured by Makkans, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, once upon a time, he prayed to Allah, "Oh Allah, give hidayah to either Umar bin Hisham or Umar bin Khattab, and through them, through him, either Umar bin Hisham or Umar bin Khattab, give a power strength to Islam." Prophet ने दुआ किया। अच्छा, ठीक है। अल्लाह ताला ने वो दुआ, अल्लाह ताला ने प्रॉफिट की दुआ हज़रत उमर के हक़ में कबूल कर ली। हज़रत उमर जो बाद में उमर फ़ारूक बन गए, उमर ख़त्ताब से, और जो उमर बिन हिशाम था वो अबू जहल बन गया। ठीक है। ठीक है, अब सईद बिन ज़ैद, हस्बैंड ऑफ उमर सिस्टर फातिमा, प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन हिज कन्वर्जन। अब कैसे हुआ? वंस अपॉन अ टाइम, मैं आपको सुना देता हूँ। ऐसा हुआ जनाब
कि Hazrat Umar was a wrestler, he loved hunting, he was a poet also. So once he came back after hunting, उनके उनकी सुन्नत ये होती थी, जब भी वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी वो मक्का से कहीं बाहर जाते थे ना, the last place they visit was Baitullah, and whenever they come back to Makkah from somewhere, the very first place they visit was Baitullah. So when Okay. Hazrat Umar came back after hunting, he went to the Baitullah and he found that some people of Quraysh, they're sitting there, they're looking very much worried. After doing the ritual, he went to them, he said, why you people are looking so sad? And they say, Umar, don't you know, Muhammad is making lots of problem. तो हजरत मैंने कहा, जिस one person is making problem, then let me do this job, I will kill him. तो जब हजरत उमर ने ये कहा कि I will kill him, तो everybody they appreciate him. हाँ उमर, you are strong man, you can kill him. सब ने अप्रिशिएट किया. ठीक है ना. ये दो नरेशन आते हैं उनके कन्वर्जन के. एक नरेशन ये भी है जो बुक में ज्यादातर आता है, जो आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक कन्वर्जन है. कैसे हुई उनकी. याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको मैंने बताया था कन्वर्जन क्वेश्चन आ चुका है. हाउ द फॉलोइंग कन्वर्टेड टू इस्लाम. अबू बकर, उमर, उस्मान, अली. So he went his home, he left his luggage, he took his sword out naked and started searching Muhammad Sallam into his street Makkah. So this news spreaded so quickly, and Makkans, Quraysh, and Muslim even they have learned that now Umar is a very furious action and he's gonna kill Muhammad Sallam. So when he was searching and he was keep asking people, did you see Muhammad and so and so? It way of Makkah, he met Nuaym bin Abdullah. And Nuaym bin Abdullah was one of the friend of Hazrat Umar. अच्छा. And Nuaym Abdullah accepted Islam at that time. But he did not disclose his faith. उस जमाने में प्रॉफिट ने ऑर्डर किया था कि अगर आप चाहे तो अपने ईमान को छुपा ले, क्योंकि आप बताओ मुसलमान को आपको लोग टॉर्चर करेंगे. जी, एग्जैक्टली. ठीक है ना. So when Nuaym bin Abdullah he met Abu Bakr, he said, Umar, why you are looking so fierce? What is your intention? What you are up to? He said, I'm going to kill Muhammad. Did you see Muhammad? So when Hazrat Nuaym he found that Umar is so angry and he might hurt Holy Prophet, he tried somehow to divert his attention from Prophet to another thing, and he said, Umar, you are going to kill Muhammad, but you know about your own family, even your sister Fatima and your brother Sayyid bin Zaid, even they accepted Muhammad's faith. तो जब हज़रत उमर ये सुने को बड़ा गुस्सा आया, और वो बिकॉज वो ही वाज अ वाइज मैन ना, देखिए बड़ा. उन्होंने कहा, यार ये हर जिससे मैं बोल रहा हूँ कि मोहम्मद का है, तो सब मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब बकिंग कर रहे हैं, ये उसने मुझे अजीब बात सुना दी. तो हज़रत उमर को फील हुआ कि लगता है ये भी इस्लाम कबूल कर लिया इसने. तो उन्होंने कहा, आई थिंक दैट इवन यू आल्सो एक्सेप्ट इस्लाम. बहरहाल he turned his journey and he went to his sister's house Fatima, and when he knocked at the door, before he heard that someone is writing something in the house, उनको ये पता चला कि जनाब अंदर कुछ चीज लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है ना. तो हजरत वहां पर क्या पढ़े थे लोग, दायर अरकम के अंदर. अब व्हेन शी ओपन द डोर विदाउट मेकिंग इट कंफर्म, he grabbed the beard of his brother-in-law, her Sayyid bin Zaid, and started beating him so badly. अब दायर तो वो तो रेसलर थे, ठीक है, तो उससे वो मुकाबले नहीं पाए, and so beating so badly. Even when Hazrat Fatima, his sister, tried to rescue her husband, even he started beating her too. अच्छा. उसने अपनी बहन को मारा, उनके भी सर फाड़ दिया, खून वून निकलने लगा. जब वो बहुत मारते रहे, इंसान फिर मारते थक भी जाता है ना. जी. तो उनको फिर फील भी हुआ कि यार मैंने अपनी बहन को भी मारा, बहनों को तो खैर मारा, खून निकाले, तो थक भी. तो उन्होंने कहा कि व्हेन आई नॉक एट द डोर आई हर्ड यू आर रिसाइटिंग समथिंग, शो मी दैट व्हाट यू आर रिसाइटिंग. क्या पढ़ रहे थे मुझे बताओ. तो फातिमा ने कहा कि यू आर इम्प्योर, यू आर नापाक, यू आर काफिर, unless until you take a bath I will not show that. Then Hazrat Umar he took a bath and when he took a bath, then Hazrat Fatima they showed the verses of Surah Taha which were recited that time. अच्छा. And it was written on a leaf. हाँ, लीफ पे लिखा हुआ था. अच्छा. ठीक है. अब रिवायत के अंदर आता है कि हजरत खबाब जो ना, ही वाज टीचिंग न्यू वर्सेस ऑफ सूरह ताहा टू हजरत सईद बिन ज़ैद एंड हजरत फातिमा. व्हेन he recited the verses, हजरत उमर's heart melted and say, take me to the Muhammad. अच्छा. मुझे मौत के बाद चलो. जब उन्होंने ये बात कही ना, तो जो छुपे हुए साबी थे ना, जो पढ़ा रहे थे, असल में जब ये घुसने से पहले क्या किया, हजरत फातिमा ने, उनके मियाँ ने उस साबी को छुपा दिया घर के अंदर कि भाई तुम छुप जाओ, ऐसा ना तुम्हें देख के तुम्हें मारे. तो जब उन्होंने कहा ना, तो वो बाहर आ गए, हिडन पेज थे, और उन्होंने कहा कि उमर, आई एम गिविंग अ ग्लैड टाइडिंग दैट अल्लाह's प्रेयर माइट बी एक्सेप्टेड फॉर यू. मैं तुम्हें खुशी की खुशखबरी देता हूँ कि हो सकता है अल्लाह के ने दुआ मांगी थी, अल्लाह ने कबूल करी तुम्हारे हक में. And he was taken to Dar Arqam. Dar Arqam was Hazrat Arqam's house when they used to learn Islam secretly, where they used to perform Salat secretly.
अच्छा ये न्यूज़ हर जगह पहुंच गई थी, तो दायरा अरकम में जो मुसलमान थे वो लोग उनको भी पहुंच गए थे उमर जिस चक्कर में कि हज़रत मुहम्मद को मर्डर करेगा। सो व्हेन दे रीच टू द हज़रत अरकम्स हाउस एंड दे नॉक एट द डोर, सो फ्रॉम इनसाइड दे से हु इज दिस? हज़रत हमजा ने पूछा कौन? तो उन्होंने कहा उमर, ओपन द डोर। तो हज़रत हमजा ही टुक हिज स्वॉर्ड आउट और उन्होंने कहा कि इफ हाँ उमर कम विद द बैड इंटेंशन, उमर विल हैव टू फेस दिस स्वॉर्ड फर्स्ट। अच्छा। अगर वो बैड इंटेंशन नहीं तो हम उससे बात करें, तो होली ने कहा लेट हिम कम इनसाइड, ओपन द डोर। So when they opened the door and Hazrat came in the room, when he saw Holy Prophet, he asked Umar, how much time will you take to accept the reality? How much time will it take to accept the truth? So Hazrat ne कहा, Ya time has arrived, time has come. And then he repeated the kalma and he accepted Islam. अच्छा। Now ठीक imagine है। when he accepted Islam, Muslim they were so happy that they shouted takbir so loudly. तकबीर समझते हो ना, अल्लाह अकबर, इसको जी, तकबीर जी, कहते हैं। अल्लाह अकबर जी। So they shouted takbir so loudly that miraculously it was heard by every Makkans. इतने अच्छा। खुश हो गए सहाबा कराम, इतने जोर से तकबीर कही जो फिजिकली नहीं जा सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मिराकल हर मक्का के कान के अंदर डाले, कहीं तकबीर पड़ी गई है। एंड इवन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही केम फ्रॉम हेवन टू कंग्रेचुलेट प्रॉफिट, अल्लाह हैज एक्सेप्टेड योर प्रेयर एंड अल्लाह हैज गिवन यू द उमर। अच्छा। ठीक है। अच्छा अब जब ये सब हो गया, थोड़ी देर बाद क्या हुआ जनाब कि हज़रत उमर ने वहाँ बैठे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई स्टार्ट टू मेक वुज़ू, वी आर गोइंग टू डू सम सलात। तो हज़रत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, व्हाई यू डोंट गो टू परफॉर्म सलात इन बैतुल्लाह? आप खाना का नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो उन्होंने कहा उमर डोंट यू नो दैट मक्कन दे डू नॉट अलाउ अस टू परफॉर्म सलात। तो हज़रत उमर ने कहा कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ उमर्स कन्वर्जन इफ वी स्टिल परफॉर्म सलात हिडन? कम विद मी, आई विल प्रोटेक्ट यू। एंड इन अच्छा। इस्लामिक हिस्ट्री द वेरी फर्स्ट टाइम Prophet and Muslim they performed salat open in Baitullah and Hazrat Umar he protected them. अच्छा। अब इमेजिन करो कि दोस्त पीपल हु आर वेटिंग इन बैतुल्लाह इन दारुल नदवा कि भाई ये खबर आने वाली है कि उमर ने नाउजुबिल्लाह हज़रत मोहम्मद को कत्ल कर दिया, तो ये तो उल्टा हो गया, अब तो वो उसको हम्म। प्रोटेक्ट कर रहा है। तो एग्जैक्टली। दैट वाज थिंग व्हिच मेड Holy सो हैप्पी एंड ही गिव द टाइटल फारूक। फारूक। द वर्ड फारूक केम फ्रॉम द वर्ड फर्क करना, अरबिक वर्ड है, उर्दू वर्ड फर्क करना, मतलब तफरीक करना, जी, जी। अलग अलग करना। जी। So the title was given Farooq, the Farooq is the person who distinguishes between right and wrong, true and false. ठीक And to है। the first time that the Muslim they perform openly. हाँ, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा अब ये हमने कन्वर्जन पढ़ा है, ठीक है, जी। ये पे इसको एंड कर देते हैं। ठीक अब है। इसके बाद मक्की लाइफ पढ़ेंगे, फिर मदीना पढ़ेंगे, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके अगर सर। तुम चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, अभी तुम बताओ। सर अभी गेस्ट आया हुआ है ना। बस ठीक है, ठीक है, इसको हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ठीक है Depends. सर, अगर आपको एक क्लास लेनी है तो कल ले लीजिएगा। कल हम चलो ठीक है, लोग मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक बता है। दीजिए। चलो ठीक। ओके ओके, ठीक ओके, ओके, अल्लाह है, अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।